Good morning, students. Today we start fourth unit. First topic is stream function for an axisymmetric flow or Stokes stream function. If the streamlines in all the planes passing through a given axis are the same, the fluid motion is said to be axisymmetric. We have already considered such flow for irrotational motion in spherical polar coordinates r theta psi, in which line theta equal to 0 is considered as axis of symmetry. Already discuss कर चुके हैं हम. अब इसमें हमने क्या कंसिडर किया? Suppose z axis with the axis of symmetry, then q theta is 0 and the fluid motion is same in every plane, theta is equal to constant, and suppose that point P in the fluid may specified by cylindrical polar coordinates r theta z. Then all quantities associated with the flow are independent of theta, and equation of continuity in cylindrical coordinate becomes this. ये टर्म राइट साइड पे शिफ्ट की तो हमारे पास ये आ गया. दिस इज द कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. आप पढ़ते हो ना mdx plus ndy is equal to 0. तो उसके लिए कंडीशन होती थी करली m by करली y is equal to करली n by करली x. ठीक है, तो वही हमने कंडीशन बता दी. This means that equation 2 is an exact differential equation and let left hand side be an exact differential. अगर exact differential equation है so it can be written as derivative of some function say psi. Therefore, this is equal to d psi. D psi means curly psi by curly r dr plus curly psi by curly z dz. Where psi is a function of r and z because theta के about हमने symmetry consider की हुई है. Which gives, यहाँ से compare करें coefficients तो curly psi by curly r की value आ गई minus r q z और curly psi by curly z की value आ गई आपके पास r q r. And the function psi, जो ये function psi है और actual में ये psi हम capital psi notation डाल रहे हैं क्योंकि एक तो r theta psi जो हमारा एक तो यूज होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में भी psi यूज करते हैं, और यहाँ psi जो है आप देखो जरा सा ये psi पे जरा सा बार है तो मींस आपने psi की नोटेशन कैसे बनानी है? सिंपल psi की नोटेशन, फिर ऊपर और नीचे उसके क्या लगा देना? आप बार लगा देना, कैपिटल psi बोलेंगे हम इसको. एंड दिस इज कॉल्ड स्टोक्स स्ट्रीम फंक्शन. जस्ट डिफरेंशिएट फ्रॉम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से डिफरेंशिएट करने के लिए हम कैपिटल psi इसको यूज कर रहे हैं. The equation of streamlines in the meridian plane theta equal to constant at fixed time t is dr by qr is equal to dz by qz. ये हमने streamlines की equation लिख दी. Now this is equal to qz dr is equal to qr dz. Now using equation 3 को हमने यूज किया और ये वैल्यू हमने पुट कर दी इसमें equation 3 से. psi की टर्म्स में हमारे पास ये आ गया करली psi by करली r dr plus करली psi by करली z dz equal to 0 means d psi equal to 0 means psi is equal to constant which represents the streamlines. Next है Stokes stream function in spherical polar coordinates. अभी तो हमने ऊपर cylindrical coordinates की बात की थी r theta z, यहाँ हम spherical polar coordinates की बात कर रहे हैं r theta psi. तो equation of continuity इस केस में spherical polar coordinates के केस में ये बनेगी, और spherical polar coordinates जो हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं और साथ साथ symmetric motion कंसिडर कर रहे हैं r theta प्लेन में, तो q psi क्या है? हमारा 0 है. यहाँ से फिर हमने उसी फॉर्म में एग्जैक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया. Exact differential है can be written as derivative of some function capital psi which is a function of here r and theta, क्योंकि psi की about symmetry चल रही है तो यहाँ से करली psi by करली r करली psi by करली theta हमने कैलकुलेट किया. In the above cases motion need not be irrotational, that is velocity potential may not exist. In case of irrotational motion it can easily be shown that velocity potential phi and the Stokes stream function psi do not satisfy CR equation due to the fact that psi is not harmonic function. ठीक है, नेक्स्ट है स्टोक स्ट्रीम फंक्शन फॉर अ यूनिफॉर्म स्ट्रीम के लिए. अभी हमने स्टोक स्ट्रीम फंक्शन की बात की सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, बात कर ली स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में. अब हम यूनिफॉर्म स्ट्रीम के लिए बात कर रहे हैं. लेट अ यूनिफॉर्म स्ट्रीम विद वेलोसिटी u be in direction of z axis such that velocity vector q is equal to u k cap. Then from the relation qr is equal to this and qz is equal to this. ये 3 नहीं है, z है. Now we get u is equal to minus 1 by r करली psi by करली r and 1 by r करली psi by करली z आपका क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि u q जो है सिर्फ एक ही कंपोनेंट आएगा उसका, u k कैप z डायरेक्शन में है वो, तो q z जो है वही आपका u बन जाएगा और q r क्या है? यहाँ 0 है. तो यहाँ से करली psi by करली r और करली psi by करली z हमने निकाला, ये वैल्यू आ रही है. तो इसका मतलब psi जो है उसकी वैल्यू क्या आ गई? माइनस यू आर स्क्वायर बाय 2. कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है उसको हमने जस्ट क्या एज्यूम कर लिया? 0 एज्यूम किया है. इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में साई की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी. अगर हम ये तो हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की है यूनिफॉर्म एक्सिस की, ये तो हमने आर
थीटा जेड के लिए अबाउट काम किया मीन्स हमने ये। और अगर हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो इस आर को आप ये कह सकते हो कि हम रिप्लेस कर दें आर साइन थीटा से, तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में आ जाएगा। ठीक है। नाउ स्टोक्स स्ट्रीम फंक्शन फॉर अ सिंपल सोर्स एट ओरिजिन। अब सिंपल सोर्स के केस में आपको पता है वेलोसिटी वेक्टर क्यू आपका क्या होता है, एफ आर आर कैप। But we have already calculated that for a source of strength m at origin, velocity vector q की वैल्यू क्या आती है, m by r square r cap. In spherical polar coordinates, that is qr q theta आपका क्या बन जाएगा, m by r square r cap, क्योंकि दो ही कंपोनेंट आएंगे ना उसके qr q theta. Also we know that in spherical polar coordinates qr की वैल्यू ये और q theta की वैल्यू ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं हम. So from equation 1 and 2 से हम यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि m by r square is equal to this. और क्योंकि क्यू थीटा यहाँ सिर्फ आर कैप है, आर की डायरेक्शन में है, क्यू आर है, क्यू थीटा भी नहीं है आपका यहाँ, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो. इसका मतलब कर ली साई बाई कर लिया आर क्या हो गया आपका, जीरो हो गया. दिस इंप्लाइज यहाँ से हमने फर्स्ट टर्म से कर ली साई बाई कर ली थीटा कैलकुलेट किया, कर ली साई बाई कर लिया आर जीरो है, इंटीग्रेट किया साई निकल गया आपसे. A constant may be added to this solution and this is usually done to make psi is equal to 0 along the axis of symmetry theta is equal to 0. In such case, psi is equal to m cos theta minus 1. And for a sink of strength m at origin, उसके लिए स्टोक्स स्ट्रीम फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, m जो है वो क्या बन जाएगा आपका एक्चुअल में माइनस m बन जाएगा. m को माइनस m से हम रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी m इंटू 1 माइनस कोस थीटा. अब सोर्स के लिए बात हो गई, सिंक के लिए बात होगी. अब हम बात कर रहे हैं डबलेट के लिए. डबलेट क्या है, डबलेट एक्चुअल में एक सोर्स और एक सिंक का कॉम्बिनेशन है जिसकी स्ट्रेंथ हम क्या बोलते हैं, म्यू. Here we assume that flow is due to only a doublet at origin of O of strength mu. Taking the axis theta equal to 0 of the system of spherical coordinates to coincide with the axis of doublet, and we find the velocity potential at point P is phi is equal to mu cos theta by r square. निकाल चुके हो आप ऑलरेडी, क्यू आर क्यू थीटा क्यू साई भी हम वहाँ वेलोसिटी कंपोनेंट्स भी निकाल चुके हैं, और रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी कंपोनेंट्स और स्टोक्स स्ट्रीम फंक्शन के बीच का रिलेशन भी हम बता चुके हैं. तो इक्वेशन 2 और 3 से यहाँ साई कैपिटल साई मीन स्टोक्स स्ट्रीम फंक्शन से रिलेट किया, तो कर ली साई बाई कर ली थीटा और कर ली साई बाई कर ली आर, ये वैल्यू आ रही है, और ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट साई इज इक्वल टू दिस वैल्यू. Next is Stokes stream function due to uniform line source. Let a uniform line source of fluid extends along the streamline segment AB of length A and consider an element QQ dash. हमने एक element consider किया है of length delta Z at a distance Z from point A. Thus we have a simple source of strength M delta Z. M तो क्या है आपके पास, constant source स्ट्रेंथ पर यूनिट लेंथ m, तो उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो आपकी वो स्ट्रेंथ बन जाएगी. QP या PQ आप बोल सकते हो, दिस इज द रेडियस वेक्टर R. दिस एंगल PQB या PQM, दिस एंगल इज थीटा, एंड PM दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस D. द स्टोक्स स्ट्रीम फंक्शन डेल्टा साई एट P पॉइंट पे for the simple source of strength m delta z at q is m delta z cos theta minus 1. means m को हमने m delta z से रिप्लेस कर दिया. सोर्स के लिए तो हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं सिंपल सोर्स के लिए. then value of Stokes stream function psi at p due to the entire line source के लिए अगर हमें निकालना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा ओवर द टोटल लेंथ. लेंथ कितनी कंसिडर की हुई है हमने, l, तो मीन्स 0 to l में हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया. इंटीग्रेट करने के लिए हमें इसमें इस ट्रायंगल में cos थीटा की जरूरत पड़ेगी, वो हमने कैलकुलेट किया. आप कर सकते हो कैलकुलेट, वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी. इंटीग्रेट करने के लिए हमने कुछ सब्स्टिट्यूशन यूज की है, इंटीग्रेट किया उसको सब्स्टिट्यूशन करके, ये हमारे पास साई की वैल्यू आ गई. ये आपके पास AP है, ये BP है, आप देख सकते हो फिगर में, इजीली वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो. तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई. SP इज द ओनली वेरिएबल पॉइंट, द सिंपलर फॉर्म इज M into AP minus BP can be taken for the evaluating velocity potential at point P. वो क्या कह रहे हैं कि P जो है वो पॉइंट वेरिएबल पॉइंट है, तो जो सिंपलर फॉर्म है वो क्या है, M into AP minus BP can be taken for evaluating velocity component at P. Stream surfaces are given by capital psi, means Stokes stream function is equal to constant, means AP minus BP is constant. And these are, ये इक्वेशन ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, these are confocal hyperboloid of revolution.
about AB with A and B as foci. We have shown earlier that the equipotentials were the confocal ellipsoids of revolution about AB with the same foci. Also, it is well known result that two familiars of confocal intersect orthogonally. आप solid geometry में पढ़ भी चुके हो, अदरवाइज यहाँ ऐसा मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है आपको. नेक्स्ट है स्टोक्स स्ट्रीम फंक्शन फॉर अ डबलेट इन अ यूनिफॉर्म स्ट्रीम. तो हमने एक डबलेट कंसिडर किया जिसका वेक्टर मोमेंट म्यू के है, सिचुएटेड एट ओरिजिन ओ इन अ यूनिफॉर्म स्ट्रीम, whose undisturbed velocity जो है वो क्या है, माइनस यू के कैप. स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें आर थीटा साई की, तो स्टोक्स स्ट्रीम फंक्शन जो है वो उसकी वैल्यू साई 1 इज इक्वल टू हाफ यू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और साई 2. ये तो हमने वैल्यू जो लिखी है वो यूनिफॉर्म स्ट्रीम के लिए मेंशन किया हुआ लिखी हुई है, और ये वैल्यू हमने डबलेट के लिए लिखी हुई है कि क्या वैल्यूज आती हैं, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. अब हम कह रहे हैं स्ट्रीम फंक्शन जो है इन कॉम्बिनेशन अगर हम यूज करें तो स्ट्रीम फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, हाफ यू आर स्क्वायर माइनस म्यू बाय आर साइन स्क्वायर थीटा. एंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम सर्फेसेस आर गिवन बाय दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट. In particular, stream functions for which capital psi is equal to 0 are given by, means इसको क्या पुट कर दो 0, इसको 0 पुट करोगे तो रिलेशन कब सेटिस्फाई होगा, either this bracket term is 0 or sin square theta is 0, means either sin theta is 0 or this term is equal to 0. sin theta 0 का मतलब 0 is equal to theta is equal to 0 और pi, और that is z axis, और यहाँ से हमने r की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. So surface of sphere with center O, 0, एंड रेडियस क्या आ गई 2 म्यू बाई यू रेज टू पावर 1/3, ये आ गया आपके पास. क्लियर है? ये ऑल अबाउट आपका स्टोक्स स्ट्रीम फंक्शन के लिए. सारा जो भी हमने ऑलरेडी काम किया हुआ है वो स्टोक्स स्ट्रीम फंक्शन के लिए क्या हुआ, बिल्कुल सेम स्टेप्स पे वही बार बार वेलोसिटी कंपोनेंट्स आपने निकालने हैं, वैल्यूज यूज करनी है और कुछ नहीं है. बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आप रीड कर लेना इसको, कहीं कैलकुलेशन में या कहीं कोई डाउट आता है तो आप पूछ लेना.